Hello everyone. In this video lesson we will continue our exercise 10.1. In this exercise up to the question number 6 we have already solved in the last video, and I am starting from the question number 7. So let's proceed, and the given question is, a structure is given in which two isosceles triangle PQR and SQR formed on same side of QR. The structure is like this, and we are solving the question number 7. Base is common, which is QR. Taking QR as a base, two isosceles triangles are formed. One is the SQR and second is PQR. This is the point P. Clear? Prove that SP is SP. If we will draw a line through the point S and P, then it will perpendicular bisector of QR. Clear? So SP is a perpendicular bisector of line QR. So let's start. How will we do? First of all, again I am analyzing the given structure. Two isosceles triangle are given, in which in this triangle SQ is equals to SR, and in this triangle PQ is equals to PR. These are two isosceles triangles are formed on a same base QR. If we will draw a line through the point S and P and produced it, let's suppose I am taking here a point T. Clear? Then prove that S यहाँ पे ये वर्टेक्स है इसका, ST और PT, ST बोल दो चाहे PT बोल दो, ST इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QR. क्लियर? मतलब हमें ये प्रूव करना है SQT इज इक्वल्स टू TR एंड दिस एंगल बोथ आर इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो चलो करते हैं स्टार्ट. ये बेसिकली कोई थ्योरम नहीं है, क्वेश्चन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट हमें क्या क्या दे रखा है. टू थिंग्स आर गिवन. ट्राइंगल PQR and triangle SQR are isosceles triangle. Or we can say that if these two triangles are isosceles, then two sides of both the triangles are equal to each other. So SQ or QS is equals to RS, and one more thing, PQ is equals to PR. PQ is equals to PR. These things are given. To prove, हमें क्या प्रूव करना है? According to our structure, we have to prove QT is equals to TR, and one more thing, it is the bisector concept, and now we need one more perpendicular concept also. So for it I am taking PTQ is equals to PTR. Angle PTQ is equals to angle PTR, and which is equals to 90 of degree. These two things we have to prove. Is there any necessary conditions to draw the structure construction? I think already this triangle has divided in two parts, so there is no need to construct anything. So directly I am starting from proof. About all these points given that to prove construction and proof I have already disclosed. Now proof. Basically a student will think about, if we will select this one triangle and this one triangle and we will congruent these both, then these two conditions will be possible. Yeah, you are right. But if we will select this one and this one, two things we have equal to each other, but third thing we need which is not given here. देखो ये इसके इक्वल है, ये कॉमन है, बात समझ में आ रही है, दोनों में हो गई. लेकिन और ये एक एंगल ये बनता है, ये दोनों आइसोसेलेस हो तो ये इक्वल होगा डेफिनेटली, लेकिन
क्या ASS कोई क्राइटेरिया नहीं होता कॉन्ग्रुएंसी का, तो देयरफॉर वी कैन नॉट अप्लाई दिस वन। चलिए, एक तो ये तो क्लियर हुआ कि हम ये दोनों ट्राइंगल नहीं ले सकते। बड़े वाले पे आते हैं, SQT एंड SRT। SQT सेलेक्ट करेंगे तो SQ इज इक्वल टू SR एंड ST इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। एंड थर्ड, सिमिलरली दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पर भी वही सेम क्राइटेरिया, ASS क्राइटेरिया, ऐसा कोई क्राइटेरिया अवेलेबल नहीं है। मीन्स वी कांट जज फ्रॉम दीज टू ट्राइंगल्स। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, मतलब हम यदि ये दोनों ट्राइंगल सेलेक्ट करें तो हमें ये एंगल चाहिए एटलीस्ट। क्लियर है बात यहाँ तक? और ये एंगल, या फिर हम बड़े वाला ट्राइंगल सेलेक्ट करें, ये वाला और ये वाला, तो हमें ये एंगल चाहिए, क्योंकि ये साइड, एक तो देखो ये साइड इसके इक्वल है और ये कॉमन है, तो इनके बीच में ये दोनों एंगल बन रहे हैं, हमें ये दोनों एंगल इक्वल करने, और ये दोनों एंगल इन दोनों ट्राइंगल्स में है, इसमें है और इसमें है। एंड यूजिंग दीज टू ट्राइंगल्स व्हाट कैन वी से, दिस इज इक्वल टू दिस है, और ये इसके इक्वल ये भी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें दे रखी है हमें। और देखो ये जो साइड है SP, वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, इसका मतलब इक्वल भी होगी, कॉमन है, तो हम यहाँ से SSS क्राइटेरिया अप्लाई करके जो भी हमें स्टेटमेंट बोलना है वो अपन क्लियर कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेलेक्टिंग टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल SQP फ्रॉम ट्राइंगल SQP एंड ट्राइंगल SRP. What are the equal things? Mention as it is. QS is equals to RS. It is given. Got it? Second, PQ is equals to PR. Check it from structure. It's also given. Third, SP is equals to SP. SP is equals to SP. This is common. Three sides of both of the triangles are equal to each other. So what can we say? We can say that using the SSS criteria of congruency, both the triangle कौन कौन सा, QSP या SPQ, जो भी एक ट्राइंगल कैसे भी सेलेक्ट कर लो, SQP ले लिया मान लो मैंने, SQP इज कॉन्ग्रुएंट टू SQ किसके इक्वल है, SR के, ठीक है, SQ इक्वल है SR के, तो पहले मैं SR सेलेक्ट करूंगा, ये RS होता तो भी गलत नहीं होता, ठीक है, लेकिन R सेकेंड टाइम इसलिए लिया क्योंकि सेकेंड टाइम देखो क्या QP किसके इक्वल है, RP के, तो R सेकेंड पे होना चाहिए, यहाँ पे आएगा SRP। क्लियर है? तो हम क्या बोल सकते हैं, यूजिंग सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी से हमें क्या मिलेगा, जो अब तीनों साइड इक्वल हो गए तो तीन एंगल बचे अपने पास, ये जो एंगल है ये इसके इक्वल, ये जो छोटे वाला एंगल ये इसके इक्वल, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, एंड हमें तो इसकी जरूरत है ऊपर वाले की, तो एक सेलेक्ट कर लो, एंगल QSP, एंगल QSP इज इक्वल्स टू एंगल RSP। ध्यान से देखना, RSP, एंड लेट सपोज इट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? अब दोनों बड़े वाले ट्राइंगल सेलेक्ट कर लो। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल SQT एंड ट्राइंगल SRT, SQ is equals to SR, SQ is equals to SR, this and this both are equal because it is given. SQ is QS और SR दोनों सेम है, कैसे भी लिख दो, चलो जो जैसा लिखा अपन ने पहले उसी के हिसाब से लिख लेते हैं, it is given. Second thing, these two angles we have already proved, so angle QST is equals to angle RSP. From equation first, or we can say that it is
प्रूव्ड, जो भी आप मेंशन करना चाहो लिख दो। प्रूव्ड लिख दोगे तो भी समझ में आएगी बात कि हमने ये प्रूव कर दिया, और इक्वेशन फर्स्ट से डायरेक्टली क्लियर हो रखा है कि हमने प्रूव, ये इतनी लंबी प्रोसेस इसी के लिए काम में ली है। थर्ड थिंग देखो यहाँ पे एस टी दोनों में कॉमन है, एस टी इज इक्वल्स टू एस टी, दिस इज कॉमन, गॉट इट। SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, एस क्राइटेरिया से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, मींस ट्रायंगल। ऑलरेडी मैंने ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट में ही ले रखा है, तो जो जैसा ऐसा कैसा कॉपी कर रहा हूं मैं, SQT इज कॉन्ग्रुएंट टू SRT। तो बचा हुआ क्या पार्ट हमें इक्वल करना था, QT इज इक्वल्स टू RT। देखो QT इज इक्वल्स टू RT यूजिंग CPCT, QT is equals to RT. One thing we have proved, एक चीज हमने प्रूव कर दी है, और यही क्यों, CPCT से तो सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। एंड सेकेंड थिंग देखो STQ, एंगल STQ वही CPCT से चल रहा है, STQ इज इक्वल्स टू STR इज इक्वल्स टू एंगल STR। अभी तक इक्वल हुए हैं, हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, और इसको अपन मान लेते हैं लेट दिस इज इक्वल्स टू अक्स, और अज्यूम्ड भी लिख सकते हो आप। वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट सम ऑफ दिस बोथ एंगल STQ प्लस एंगल STR इज इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर ऑफ एंगल, both are equals to x plus x is equals to 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर लूँ मैं, 2x is equals to 90 और x is equals to, सॉरी ये 180 आएगा, x is equals to 90, x की वैल्यू क्या आ गई 90। देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंगल STQ is equals to angle STR is equals to 90 degree, and therefore we can say that SP is perpendicular bisector of QR. Clear, student? So please pause this and note it down. Let's start the next question, question number 8. And the given question is, a structure is given and structure is looking like these are perpendiculars, both are, it is the point N and this is the point M, and triangle PQR, and this is the point S. In the given structure, PS is a bisector of angle P. PS is a bisector of angle P. It means these both angles are equal. Clear? Side QR, PS bisector of angle P intersects side QR at the point S. SN is perpendicular on PQ and SM is perpendicular on PR. Prove that SN is equals to SM. हमें क्या प्रूव करना है, SN is equals to SM। चलिए मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ हमें क्या क्या दे रखा है। The given things are, a triangle is given PQR in which PS is the angle bisector of angle P, clear है, and S is the intersection of PS and QR, clear। SN is perpendicular on PQ, SM is perpendicular on PR, then prove that SN is equals to S। First of all, write what are the given things. Given that in this statement we will mention angle, directly I am writing some things are given, important things I am writing, these two angles are equal, angle QPS is equals to angle RPS, clear है।
measurement we don't know, just we know only both the angles are equal. Second thing, SN is perpendicular on PQ and SM perpendicular on PR. So these two statements are given. ये इंटरसेक्शन पॉइंट है वो डायरेक्टली स्ट्रक्चर से क्लियर हो रहा है. अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव SN is equals to SM. This thing we have to prove. कंस्ट्रक्शन नेसेसरी नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली प्रूफ पे चलते हैं. एक तो देखो ये ट्रायंगल सेलेक्ट कर लो क्योंकि इसमें ये इसके इक्वल हो रहा है, ये इसके इक्वल हो रहा है, ये कॉमन हो रही है, तो ये दोनों ट्रायंगल प्रायोरिटी बेसिस पे लेके सेलेक्ट कर लो. प्रूफ फ्रॉम ट्रायंगल SNP और PNS लेता हूं, PNS एंड ट्रायंगल PMS. क्लियर? बोथ थिंग्स आर गिवन. एंगल NPS बोल दो चाहे QPS बोल दो, दोनों सेम ही है. एंगल NPS is equals to MPS. Angle MPS, this is given. Clear है? Second, angle PNS is equals to angle PMS, which is equals to 90 degree, and this is also given. और ये कहाँ दे रखा है? ये देखो यहाँ से परपेंडिकुलर है तो मतलब 90 डिग्री. थर्ड थिंग, PS is common in both the triangles. PS is equals to PS and this is common side. Clear? अब कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई होगा? AAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी और AS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. क्लियर? अब देखो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, AAS क्राइटेरिया अप्लाई हुआ तो ट्रायंगल कौन सा किसके कॉन्ग्रुएंट? ये दोनों ट्रायंगल म्यूचुअली कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. और बाय द वे मैंने यहां पर ऑलरेडी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सेलेक्ट किए हैं तो हम जो है एज इट इज मेंशन कर सकते हैं. ट्रायंगल PNS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PMS. ठीक है? यहां तक यूजिंग CPCT. क्या मिलेगा देखो CPCT से? थर्ड पार्ट क्या बच गया और NS बच गया. यहां से देखो मिल जाएगा NS इज इक्वल्स टू MS. NS इज इक्वल्स टू MS. और हमें यही प्रूव करना था, या फिर हम इसको बोल सकते हैं SN इज इक्वल्स टू SM. Hence proved. Okay student, so let's proceed to the last and final question of this exercise, question number 9th, which is in the given structure angle ABC is given. ये ऐसे कोई एंगल दे रखा है ABC. Find the locus of a point in the interior of angle ABC and equidistance from BA and BC. हमें ABC के इंटीरियर में कोई एक पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है, जो कि मान लो कि ये मैंने एक पॉइंट लिया, ये इससे और इससे इक्विडिस्टेंस है. ये अपन ऑलरेडी थ्योरम कर चुके हैं. ये पॉइंट मान लेता हूँ P और ये पॉइंट मान लेता हूँ Q और इसका लोकस मान लो मैंने इंटीरियर का मतलब यहीं से नहीं, यहाँ पर भी यदि ये पॉइंट होता तो इक्वी डिस्टेंस होता. तो यदि हम इसको आगे प्रोड्यूस करवाएं तो हमें क्या रिजल्ट देगा, मतलब इसको अपन क्या कहेंगे. ये मैं पॉइंट मान लेता हूँ T मान लिया. ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप समझने की कोशिश करें. देखो
हम एक तो ये ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे और एक ये ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या दे रखा है, इन द ट्रायंगल ABC T इज अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AB एंड BC, और वी कैन से दैट PT इज इक्वल्स टू TQ. इक्विडिस्टेंस तो डेफिनेटली इक्वल होगा. और जब बात डिस्टेंस की आती है, एक पॉइंट की ध्यान रखना, एक पॉइंट की उसके अपोजिट क्या, उसके जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे उसके अपोजिट ही होगी. पॉइंट की लाइन से जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी. ठीक है, दो ये मान लो कि ये टू लाइंस दे रखी हैं, हमें इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस ड्रॉ करोगे तो कभी ये डिस्टेंस नहीं होगी, डिस्टेंस हमेशा ही परपेंडिकुलर होगी. तो दो लाइन के बीच में या फिर एक लाइन और पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर. और जनरली जब प्लेन की बात आती है, प्लेन, स्ट्रेट लाइन, रे है, अपने क्यूबॉइड है, उनकी जो डिस्टेंसेस की बात की जाती है या कोई दो आर्टिकल्स हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है. ठीक है, तो ये डिस्टेंस है तो डेफिनेटली ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर्स होंगे. अब देखो तो हमारे गिवन में क्या क्या बात आ गई, PT इज इक्वल टू TQ एंड दिस एंगल टू दिस एंगल. क्लियर है, कंस्ट्रक्शन जरूरत नहीं है, प्रूफ पे आते हैं. फ्रॉम ट्रायंगल TPB एंड TQB, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, बोथ आर इक्वल, इट इज कॉमन, दीज आर 90 डिग्री. बात समझ में आ गई. तो यहाँ पे राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड क्राइटेरिया अप्लाई हो जाएगा. और ये 10.2 वाली थियरम है, थियरम नंबर 10.2 एज इट इज है. और फाइनली ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर देगा. CPCT से हम दोनों एंगल इक्वल प्रूव कर देंगे. इक्वल प्रूव होते ही हम इसको क्या बोल देंगे, BT या फिर द लोकस ऑफ द पॉइंट T इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC. बात समझ में आ गई. और ये अपनी एक्सरसाइज का था लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन. एंड फ्रॉम टुमारो we'll start a new exercise 10.2. before it I will introduce you about the theorems which are related to the exercise 10.2. theorems portion are very important and is the literally we can say that all the theorems are the backbone of a chapter. Clear? So please pause this and note it down.